نیکسٹ فارمولا ہم دیکھنے جا رہے ہیں پی ایم ٹی کا فارمولا. پی ایم ٹی فارمولا بیسیکلی ہم ڈسکس کرتے ہیں پریزنٹ مارکیٹ ریٹ. اس فارمولے کا بیسیکلی جو مین فنکشن ہے وہ مارگیج کے حوالے سے یوز ہونے والی کمانڈ ہے. مثال کے طور پر بہت سارے ایجنٹس یا شاپس یا کمپنیز آپ نے دیکھی ہوگی جو کہ آپ کو چیزیں جو ہے وہ انسٹالمنٹ پہ پلان بنا کر دیتے ہیں. تو انہوں نے ڈفرینٹ آئٹمس کے اوپر کس طرح سے بیسیکلی انسٹالمنٹ پلان بنایا ہوتا ہے, اس کا یہ ایک پی ایم ٹی فارمولے کے ذریعے ہم اس کا ریزلٹ نکالنے کی کوشش کریں گے. فار ایگزامپل ایک کسٹمر نے ایک آئٹم بائی کیا لائک لیپ ٹاپ کی ڈاؤن پیمنٹ بیسیکلی پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں. لیپ ٹاپ کی جو اماؤنٹ تھی لائک وہ 68,000 روپیز تھی. اس نے ڈاؤن پیمنٹ کیا لائک 10,000 روپیز. نمبر آف ایئر آپ کو کہتا ہے کہ اسے 3 سال کے لیے لیپ ٹاپ انسٹالمنٹ پہ چاہیے. بینک جو مارک اپ اس پہ چارج کر رہا ہے وہ 22% ہے, اور اس کا جو منتھلی پلان بنا ہے وہ ہم یہاں پر حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فارمولا ہر دفعہ کی طرح یہاں پر بھی اسٹارٹ ہوگا ایکولز ٹو کی سائن کے ساتھ, ایکول ٹو پی ایم ٹی. پی ایم ٹی کا فارمولا سینٹیکس میں ہمیں بتاتا ہے کیلکولیٹ دا پیمنٹ فار اے لون بیسس اور کنسٹینس پیمنٹ اینڈ اے کنسٹینس انٹرسٹ ریٹ. پی ایم ٹی بریکٹ اوپن, دین اس کے بعد ہمیں کہتا ہے ریٹ بتائیے. ریٹ کا مطلب انٹرسٹ ریٹ. تو بینک انٹرسٹ ریٹ بیسیکلی چارج کر رہا ہے 22%, لیکن یہ جو 22% ہے یہ پر اینم ہے, ایک سال کا چارج ہو رہا ہے, پر منتھ نہیں ہے. تو ہم اس پرسنٹیج کو ڈیوائڈ کر دیں گے 12 سے, تو ہمارے پاس پر منتھ کا مارک اپ آ جائے گا. کاما کریں گے. نمبر آف پیریڈ, کتنے عرصے کے لیے پیسہ کے لیے لون لی جا رہی ہے, تو لون لی جا رہی ہے 3 ایئرس کے لیے. تو جب ہم 3 کو ملٹیپلائی کریں گے 12 کے ساتھ تو 36 منتھ کا پلان ہمارے پاس آ جائے گا. دین اس کے بعد کاما. پریزنٹ ویلیو, لیپ ٹاپ کی جو قیمت ہے اوریجنل وہ ہے 68,000, لیکن اس میں سے ہم مائنس کرتے ہیں 10,000 روپیز جو کہ ہم ڈاؤن پیمنٹ کر چکے ہیں. تو ریمیننگ اماؤنٹ جو ہے وہ بیسیکلی ایکچوئل میں ہم بینک سے لون لے رہے ہیں, جس پر بینک مارک اپ لگائے گا 3 ایئرس تک, اور اس کی 36 منتھ کی انسٹالمنٹ پلان بنا کر ہمیں دے دے گا. فائنلی ہم اس فارمولے پہ بریکٹ کلوز کر کے انٹر کرتے ہیں. منتھلی پلان ہمارے پاس بن کر آ گیا 2,215 روپیز منتھلی پلان ہمارا ہے. ہم اس ڈالر کے سمبل کو کاما کی مدد سے ہٹا رہے ہیں. اگر مثال کے طور پر لیپ ٹاپ جو 68,000 کا تھا, اگر ہم کوئی اور لیپ ٹاپ بائی کرتے ہیں جس کی اماؤنٹ 75,000 تھی, ہم نے ڈاؤن پیمنٹ ایکچوئل میں 10,000 ہی دیا ہے. 3 ایئرس کے لیے پلان لے رہے ہیں, 22% بینک جو ہے وہ مارک اپ لے رہی ہے. تو اس کا جو منتھلی پلان اب ہمارے پاس بن کر آیا ہے وہ بیسیکلی 2,482 روپیز. اگر لیپ ٹاپ کی جگہ فار ایگزامپل آپ فائنینس کے ساتھ ہیں کار جس کی قیمت مثال کے طور پر 6,80,000 روپے ہے, اور آپ نے ڈاؤن پیمنٹ کیا لائک 1,00,000 روپے, آپ نے لون لیا فار ایگزامپل 5 سال کے لیے, بینک نے آپ کو مارک اپ لگایا 22%, تو اس کا جو منتھلی پلان آپ کے پاس آئے گا وہ 16,018 روپیز 97 پیسہ یہ منتھلی پلان بن کر آئے گا. تو جب آپ کسی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں لون کے لیے اپلائی کرتے ہیں, اچھا ایون اگر میں اس کے لیے لون پرسنل لون لیتے ہیں تو ہیڈنگ میں ڈال دیتا ہوں پرسنل لون. میں نے لون لی بینک سے لائک 1,00,000 روپے کا, اور اس میں ڈاؤن پیمنٹ تو آپ کو پتہ ہے ہوتی ہی نہیں ہے. لون لے رہا ہوں میں 3 سال کے لیے, اور بینک مجھے مارک اپ لگا رہا ہے 22%, تو میرا جو منتھلی پلان ہے وہ 3,819 روپیز, یعنی ایوری منتھ مجھے جو ہے وہ 3,819 روپیز کا چیک جو ہے وہ بینک میں ڈراپ کرنا ہے, اگر کنسٹینس مارک اپ اور کنسٹینس جو ہے وہ ویلیو ہمارے پاس پلان رہتی ہے. تو جب آپ کسی بھی فائنینشیل کمپنی سے کوئی بھی آئٹم یا کوئی بھی چیزوں کو انسٹالمنٹ پلان بناتے ہیں, تو ان کے پاس سارٹ آف یہ ایک چھوٹا سا پروگرام ڈیزائن ہوا ہوتا ہے. وہ جسٹ آئٹم کا نام ڈالتے ہیں, اس پہ اماؤنٹ انٹر کرتے ہیں, آپ ڈاؤن پیمنٹ کیا دے رہے ہیں وہ انٹر کرتے ہیں, نمبر آف ایئر آپ نے کتنا پلان بنایا ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں, مارک اپ وہ اپنا بتاتے ہیں, انسٹالمنٹ پلان جو ہے وہ خود بخود بن کے ہمارے پاس آتا ہے.
अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ जिस पर मुझे 1 लाख रुपया लोन मिल रहा है, डाउन पेमेंट 0 है, 3 इयर्स के लिए प्लान ले रहा हूँ और 22% मार्कअप है। तो मुझे ये मालूम करना है कि एवरी मंथ जो मैं 3,819 रुपीज़ का चेक बैंक को दूंगा उसमें से बैंक कितना अमाउंट प्रिंसिपल में रखेगा और कितना अमाउंट इंटरेस्ट में रखेगा। तो इसके लिए अगेन हम एक डिटेल प्लान बनाते हैं जो इसी के कनेक्टिविटी में होगा। इसके लिए हम लोग सबसे पहले फाइंड करते हैं पीरियड, देन उसके बाद मार्कअप, सॉरी इंटरेस्ट, और ये 4 हेडिंग्स हमने यूज की है। इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, मार्कअप और टोटल हमारा कितना सबमिट होगा। अच्छा, पीरियड के अंदर बेसिकली हम डिफाइन करेंगे 36 मंथ का प्लान, चूंकि हम लोन ले रहे हैं 3 इयर्स के लिए, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ड्रैग करेंगे 36 मंथ तक के प्लान को। फार्मूला पहला लगेगा इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट का फार्मूला स्टार्ट होता है IPMT के जरिए। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि ये आइडिया हो कि ये फार्मूले की कैटेगरी है। फार्मूला हमने स्टार्ट किया इक्वल्स टू IPMT और ब्रैकेट ओपन किया। अब इसके सिंटैक्स को भी अगर आप गौर से देखोगे तो इसमें काफ़ी सिमिलरिटी आपको मिलेगी जो हमने पहले PMT में देखी थी। सबसे पहले कहता है कि रेट बताइए, यानी इंटरेस्ट रेट। बैंक हमसे रेट चार्ज कर रहा है 22%, लेकिन ये 22% जो है वो मंथली ईयरली है, तो हम इसको मंथली प्लान के ऊपर लाएंगे, यानी डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। देन कॉमा। अब यहाँ पर एक नई चीज़ आ गई है हमारे पास, पर का मतलब होता है पीरियड। तो बेसिकली हम जो पहली इंस्टॉलमेंट यानी इंटरेस्ट निकाल रहे हैं वो फर्स्ट मंथ की निकाल रहे हैं, तो पर में हमें 1 पे क्लिक करना है ताकि पहला महीना यहाँ पर डिफाइन हो। देन उसके बाद कॉमा, नंबर ऑफ पीरियड, कितने साल के लिए हम लोन ले रहे हैं। हम लोन ले रहे हैं बेसिकली 3 इयर्स के लिए, हमने 3 इयर्स पे क्लिक किया। देन कॉमा, फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू, 1 लाख रुपए का हम लोन ले रहे हैं जिसमें से हमने कुछ भी डाउन पेमेंट नहीं किया, तो हम इसको -0 करके इंटर करते हैं। जब हम पहली मर्तबा इंस्टॉलमेंट जमा करवाएंगे तो एक्चुअल में बैंक हमें 1,833 रुपीज़ जो है वो इंटरेस्ट में रख लेगा और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल में डाल देगा। तो हम प्रिंसिपल अमाउंट को भी देख लेते हैं यहाँ पर कि वो कितना है। इसके लिए हम फार्मूला लगा रहे हैं PPMT का। PPMT के फार्मूले को स्टार्ट करते हैं, सेम सिंटैक्स है। रेट बताइए, हमने कहा रेट है 22%, इसको डिवाइड करेंगे 12 से। एक छोटा सा प्रॉब्लम हमने यहाँ पर किया है और वो था हमारा नंबर ऑफ ईयर, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं किया था, मल्टीप्लाई बाय 12 सॉरी, तो हमारा 36 मंथ का प्लान जो है आएगा। फार्मूला हम दोबारा लगाएं तो PMT रेट, इंटरेस्ट रेट है हमारा 22% डिवाइडेड बाय 12, नंबर ऑफ पीरियड ये पहला महीना है, कॉमा, एंड पर हम ले रहे हैं 3 इयर्स के लिए लोन जिसमें इसको मल्टीप्लाई करें वो 12 से, और कॉमा 1 लाख में से हमने माइनस कर दिया डाउन पेमेंट को और एंटर किया। ये प्लान हमारे पास आ गया कि 1,985 रुपीज़। हम टोटल कर लेते हैं, इक्वल्स टू इंटरेस्ट रेट प्लस प्रिंसिपल रेट, अमाउंट आ गया 3819, और बैंक भी हमसे ये कह रहा है कि 3819 आपको पेमेंट करना है। फाइनली इन तीनों को मैं कन्वर्ट करता हूँ अपने न्यूमेरिकल लाख रुपीज़ के अंदर। अब ये पूरा एक फार्मूला हमने तैयार तो कर दिया, लेकिन ये फार्मूला जो है वो ठीक से वर्क नहीं करेगा उस सूरत में जब मैं इसको ड्रैग करूँगा। ये देखें ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब मैंने पहली दफ़ा फार्मूला लिखा था और उस पर मैंने रेंज डिफाइन की थी, तो हर एक सेल एड्रेस की रेंज बिल्कुल प्रॉपर आ रही है, जिसकी वजह से रिजल्ट भी मेरे पास बिल्कुल ठीक से जनरेट हो रहा है।
लेकिन जब मैं सेकंड सेल के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखिए रेंज एक एक स्टेप नीचे आ गई। उसने पहली अमाउंट 1 लाख रुपीस को स्किप कर दिया और नीचे दूसरे सेल को रेंज में लेना शुरू कर दिया। इसके बाद जब मैं थर्ड सेल पर डबल क्लिक करके देखता हूँ तो आप देखिए उसने ऊपर के 2 सेल को स्किप कर दिया और नीचे के 2 सेल्स की रेंज बनाकर आगे काम करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से रिजल्ट मेरे पास गलत आ रहा है। तो ऐसी सूरत के अंदर कि जब आपके पास रिजल्ट ट्रैक करने हो और आपके पास कंटिन्यूएशन में कोई और वैल्यू ना हो, तो ऐसी सूरत में सेल एड्रेस को फिक्स किया जाता है। सेल एड्रेस को फिक्स करने के लिए हम लोग कीबोर्ड से F4 के बटन को इस्तेमाल करते हैं। और कैसे फिक्स करते हैं इसको हम दोबारा से देखते हैं। फार्मूला स्टार्ट होगा इक्वल्स टू RPMT ब्रैकेट ओपन, रेट है 22%। अब ये जो 22% रेट है ये थ्रू आउट 36 मंथ का जो प्लान बन रहा है उसमें मार्कअप जो है वो फिक्स है। तो इसलिए इस सेल पर खड़े रहकर हम F4 करेंगे कीबोर्ड से। F4 प्रेस करने से $B $7 आ जाएगा। ये सेल एड्रेस को फिक्स करता है। जब हम एक और दफ़ा F4 प्रेस करते हैं तो B $7 आता है, ये पर्टिकुलर रॉ को फिक्स करता है। जब हम दोबारा F4 करते हैं तो ये कॉलम को फिक्स करता है और जब हम दोबारा F4 करते हैं तो ये पर्टिकुलर सेल हमारा नॉर्मल हो जाता है। फिल वक्त हमें $B $7 यानी सेल एड्रेस को फिक्स करना है। इसके बाद हम कॉमा लगाते हैं। पर यानी पहला महीना है तो हमने 1 पे क्लिक किया, देन कॉमा, नंबर ऑफ पीरियड। नंबर ऑफ पीरियड बेसिकली 3 इयर्स है। अब ये जो 3 इयर्स का प्लान है ये थ्रू आउट 36 मंथ तक फिक्स है, तो हम इसको F4 करेंगे। एक छोटी सी मिस्टेक जो पहले भी हो गई उसको ठीक कर लेते हैं। 36 मंथ का प्लान बनाने के लिए हमें 3 को मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा और मार्कअप को भी हम डिवाइडेड बाय 12 करना होगा। देन उसके बाद कॉमा, प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट की जा रही है, ये भी थ्रू आउट 36 मंथ तक फिक्स है, तो हम इसको भी F4 करेंगे। माइनस इसमें से डाउन पेमेंट 0 की गई है, ये भी थ्रू आउट 36 मंथ तक फिक्स है, तो इसको भी हम F4 करके फिक्स करेंगे और अब इंटर करेंगे। रिजल्ट हमारे पास जनरेट हुआ। लेकिन इस रिजल्ट में अच्छी बात ये होगी कि जब आप हम इसे ड्रैग करेंगे तो ग्रेजुअली इसका रिजल्ट जो है वो जनरेट होगा, जबकि डबल क्लिक करने से थ्रू आउट 36 मंथ का प्लान हमारे पास बन के आ जाएगा। और हम देखेंगे कि शुरू के मंथ के अंदर कंपनी जो है वो इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज कर रही है, जबकि बाद में इंटरेस्ट कम होता जा रहा है और प्रिंसिपल अमाउंट डेफिनेटली वो इंक्रीज होती चली जाएगी। सेम फार्मूला प्रिंसिपल के ऊपर अप्लाई होगा, इक्वल्स टू PEMT ब्रैकेट ओपन, रेट है जी हमारा 22%, इसको हम फिक्स करेंगे और डिवाइड करके 12 से, कॉमा, पर पहला महीना है, कॉमा, नंबर ऑफ पीरियड 3 इयर्स के लिए प्लान किया जा रहा है, F4, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे, कॉमा, इसके बाद डाउन पेमेंट 1 लाख रुपीस की जो है वो ली जा रही है, सॉरी इनिशियल अमाउंट जो है वो 1 लाख रुपीस मांगी जा रही है, इसको फिक्स किया जा रहा है, माइनस, और डाउन पेमेंट जो है वो 0 है, इस सेल एड्रेस को भी फिक्स कर रहे हैं। इंटर कर रहे हैं, रिजल्ट जनरेट हुआ। डबल क्लिक करने से थ्रू आउट 36 मंथ का प्लान हमारे पास आ गया और हम देख सकते हैं कि ग्रेजुअली हर मंथ के अंदर इंस्टॉलमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता जा रहा है। इसी तरह से टोटल निकालना है, इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, और इसके अंदर किसी को फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिंपल दोनों सेल को प्लस कर दिया और इसको ड्रैग करते हैं, लास्ट तक 36 मंथ का प्लान आ गया। एवरी मंथ आपको जो चेक ड्रॉप करना है वो 3819 रुपीज़ का है। सिर्फ हमने उसके ब्रेकअप्स निकाले कि किस तरह से बेसिकली प्लान हमारे पास बन सकता है। नेक्स्ट फार्मूला हम देखने जा रहे हैं एज कैलकुलेशन के हवाले से। अगर मुझे एज की कैलकुलेशन करनी है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ है लाइक 1 Jan 1980। अब मुझे इसकी डेट में से लाइक ये निकालना है कि वो कितने दिन, कितने साल और कितने महीने लाइफ रहा, तो उसकी फिगर्स हम निकाल रहे हैं, ईयर्स, मंथ एंड डेज। फॉर्मूला इस्तेमाल होगा इक्वल्स टू dated if then ब्रैकेट ओपन। डेटेड इफ के फार्मूले को रेंज में लेने के बाद, टाइप करने के बाद
سب سے پہلے ہمیں کہتا ہے فنکشن بتائیے. ہم نے کہا اس ڈیٹ میں سے ٹوڈے کو نکالے اور صرف اس میں سے ایئر ہمیں بتا دے. تو ایئر کو ہم انورٹیڈ کاما میں دیں گے اینڈ دین انٹر. رزلٹ آیا 31 ایئرس. سیم ہم لوگ منتھس نکالنے کا طریقہ دیکھیں گے. ایکولس ٹو ڈیٹ ایف بریکٹ اوپن. ہم نے ڈیٹ کو سلیکٹ کیا کاما اس میں آج کا دن ہم لے رہے ہیں اور ایئر میں سے ہمیشہ منتھ کو نکالا جاتا ہے. تو ایئر میں سے ہم نے منتھ کو سبٹریکٹ کیا تو بیسکلی ٹوٹل 0 منتھس کیونکہ جنوری ہے اور یہ جنوری کا ہی مہینہ چل رہا ہے تو ہمارے پاس 0 منتھس آ رہے ہیں. سیم ہم ڈیٹ کے اندر کام کر رہے ہیں. ڈیٹ ایف بریکٹ اوپن. ڈیٹ کو ہم نے سلیکٹ کیا کاما ٹوڈے میں سے اینڈ دین اب منتھ میں سے بیسکلی ڈیٹ کو نکالیں گے. ایئر ایک سیپریٹ فنکشن ہے جو ٹوڈے میں سے آتا ہے. ایئر میں سے منتھ کو نکالا جاتا ہے لیکن منتھ سے ہمیشہ ڈیٹ کو حاصل کیا جاتا ہے. دین فائنلی انٹر کرتے ہیں. ہمارے پاس رزلٹ آ گیا 9 days. اگر میں یہاں پر ڈیٹ کو چینج کرتا ہوں فار ایگزامپل امپلائی کی ڈیٹ ہے 14 اگست 1947 تو آپ دیکھیں وہ 63 years 4 months and 27 days اولڈ ہے. تو یہ ایک ایج کیلکولیشن کے حوالے سے بہترین فارمولا جس کو ہم لوگ کسی بھی ایج کی کیلکولیشن کے پرپس میں یوز کر سکتے ہیں. اب اسی فارمولے کو ایک اور ٹیکنیک سے بھی ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر مجھے امپلائی کی ایج کا جسٹ راؤنڈ اپ دیکھنا ہے کہ وہ کتنے ایئرس بڑا ہے اور اسی کے اندر ڈیز اینڈ منتھس اس کے اندر ہی کاؤنٹ ہو جائے تو ہم فارمولا لگاتے ہیں ایکولس ٹو ٹوڈے میں سے مائنس کرے اس ڈیٹ کو یعنی آج کی تاریخ میں سے اس کو مائنس کرے اور ڈیوائڈ کرے 365.25. یہ ہمارے ڈیٹ کا اسٹینڈرڈ فارمیٹ ہے. ہم اس سے ڈیوائڈ کریں گے انٹر کریں گے. جو ایج ہے وہ 63 years اینڈ لائک 4 months اور سم تھنگ ڈیز امپلائی کی ایج ہمارے پاس بنتی ہے. تو یہ بھی ایک فارمیٹ ہے جس کی مدد لیتے ہوئے ہم لوگ ایج کی کیلکولیشن آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. نیکسٹ فارمولا ہم دیکھنے جا رہے ہیں جو کہ اے بی ایس کا فارمولا ہے. اے بی ایس کا فارمولا بیسیکلی نیگیٹو ویلیو کو پازیٹیو میں کنورٹ کرتا ہے. مثال کے طور پر میرے پاس ایک نمبر ہے جس کو مجھے مائنس ہٹا کر پلس میں لانا ہے تو ہم فارمولا لگاتے ہیں ایکولس ٹو اے بی ایس بریکٹ اوپن. ہم نے ویلیو کو رینج میں دیا اور انٹر کیا. ہمارے پاس سمپل آنسر آ گیا. نیگیٹو ویلیو یہاں سے ختم ہو گئی اور ہمارے پاس سمپل آنسر پازیٹیو کے اندر آ رہا ہے. جبکہ ایک اور آسان سا فارمولا ایوریج کا فارمولا ہے. ایوریج کا فارمولا عام طور پہ کرکٹ میچز کے اندر آپ نے دیکھے ہوں گے کہ لائک اگر پاکستان کی ٹیم نے 50 اوورز کے اندر لائک 300 رنز بنائے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایچ بال پہ تقریباً 1 رن جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے. تو یہ بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ نمبر آف بالز کو پلس کر دیتے ہیں نمبر اسکور کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں نمبر آف بالز کے اوپر تو آنسر جو ہے وہ خود بخود ہمارے پاس آ جاتا ہے. اسی طرح سے ایوریج کے فارمولے پر بھی ہم کچھ اسی طرح سے کام کر رہے ہیں. لائک میرے پاس ویدر منڈے ٹل سنڈے ایک ویک میں نے جنریٹ کیا اور میرے پاس ویدر کا جو ٹیمپریچر ہے لائک وہ کچھ اس طرح کا رہ رہا ہے. اب ابھی معلوم کرنا ہے کہ اس ویک کے اندر ویدر کا ایوریج ویدر جو ہے وہ کیا رہ رہا ہے. تو میں فارمولا لگا رہا ہوں ایکولس ٹو ایوریج بریکٹ اوپن. تمام نمبرز کو ہم نے رینج میں لیا اور انٹر کیا. ہمیں آنسر مل گیا کہ ایوریج جو ویدر رہ رہا ہے
वो लाइक 30.66 के आसपास रह रहा है। इसी तरह से अगर एक साहब डेली वेजेस पे काम करते हैं और उनकी जो बेसिक सैलरी है लाइक किसी दिन 600, 700, 800, 450, 900 और 800 लाइक उन्होंने 6 वर्किंग डेज काम किया, तो उनको ये मालूम करना है कि एवरेज उन्होंने वीक के अंदर कितना पैसा कमा लिया, ताकि वो बेसिकली एक आइडिया जनरेट कर सके कि वीकली उनकी क्या इनकम है। तो फार्मूला इसी तरह का हम यूज करते हैं, इक्वल्स टू एवरेज देन ब्रैकेट ओपन, सॉरी इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन, तमाम नंबर्स को हमने रेंज में दिया, फाइनली एंटर किया, एवरेज जो उनकी इनकम है वो लाइक 725 रुपीज पर डे बनती है। तो ये बेस्ट फार्मूला जिसकी मदद से हम लोग आइडियली जो है वो चीज़ों को देख सकते हैं। नेक्स्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है और वो है कॉनकॉर्डिनेट। कॉनकॉर्डिनेट का फार्मूला बेसिकली दो वैल्यू को आपस में मिलाने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम सैयद मोहम्मद अहमद, और हम इसे साथ रिजल्ट हासिल कर लेते हैं। एक एम्प्लॉय का लाइक ये कंप्लीट नेम है और मैं इसके कंप्लीट नाम को 3 अलग अलग सेल की जगह पर एक ही सेल के अंदर हासिल करना चाहता हूँ, तो हम फार्मूला लगाते हैं इक्वल्स टू कॉनकॉर्डिनेट देन ब्रैकेट ओपन। कॉनकॉर्डिनेट हमसे कहता है कि पहले टेक्स्ट 1 बताइए कि आपकी पहली वैल्यू कहाँ है। पहली वैल्यू हमारी फर्स्ट नेम है, हमने फर्स्ट नेम को रेंज में दिया, कॉमा, सेकंड नेम को हमने सेलेक्ट किया, कॉमा, थर्ड नेम को हमने सेलेक्ट किया। अब जब मैं इसको एंटर करूंगा तो रिजल्ट तो जनरेट होगा, लेकिन इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम आएगा। आप देखें वो प्रॉब्लम क्या है। रिजल्ट तो जनरेट हुआ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसने तीनों नामों को एक साथ जब मिलाया तो उसमें बीच में स्पेसेस उसने खत्म कर दिया। एक्चुअल में ये तीनों नाम अलग अलग है। अगर ये नंबर होते तो अच्छी बात होती कि इनके दरमियान स्पेसेस खत्म हो जाते और ये पूरी एक फिगर बन जाती, लेकिन अगर ये नाम है तो इसके बीच में स्पेसेस जो है वो कंपलसरी है। तो इसी फार्मूले को एक और मरतबा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब इस चीज को देखते हैं कि हमें ख्याल क्या रखना है। फार्मूला यही है, इक्वल्स टू कॉनकॉर्डिनेट देन ब्रैकेट ओपन। फर्स्ट नेम को हमने सेलेक्ट किया। अब फर्स्ट नेम के बाद बेसिकली हमें स्पेस देना है, तो हम कॉमा लगाएंगे और स्पेस देने के लिए इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस बार, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड देन कॉमा। देन हम टेक्स्ट 2 सेलेक्ट करते हैं, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस बार, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज देन कॉमा, और देन थर्ड नेम को सेलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अब इस फार्मूले के अंदर क्या है, हर एक वर्ड के दरमियान बेसिकली स्पेस आ रहा है, ठीक है, जो कि हमने हासिल किया लाइक स्पेस बार की मदद से, यानी हमने वर्ड्स के दरमियान बेसिकली स्पेस बार्स ऐड किए इन्वर्टेड कॉमा के जरिए। तो कोई ऐसा वर्ड कि जहां पर आपके पास स्पेस नहीं आ रहा हो तो आप उनको इन्वर्टेड कॉमा के जरिए स्पेस डिफाइन कर सकें। कॉनकॉर्डिनेट को यूज करने का एक और आसान तरीका, आप एक और नाम यूज करते हैं लाइक साहिब यासीन। कॉनकॉर्डिनेट का फार्मूला ही यूज करते हैं, ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट 1 को सेलेक्ट किया। अब हम इनको आपस में मिलाने के लिए बेसिकली कॉमा की जगह यूज करते हैं एंड पर्सन, देन स्पेस, एंडेड कॉमा, स्पेस, एंडेड कॉमा क्लोज एंड देन एंड पर्सन। यानी पहले हम कॉमा यूज कर रहे थे सेपरेशन के लिए, अब हम आपस में कॉनकॉर्डिनेट और सेपरेट करने के लिए एंड पर्सन को यूज कर रहे हैं। देन टेक्स्ट 2, एंड पर्सन, एंडेड कॉमा, स्पेस, इनवर्टेड कॉमा क्लोज एंड पर्सन,
text3 एंड देन फाइनली ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। आप देखें सेम रिजल्ट हमारे पास जनरेट हुआ, लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है कि हमने यहाँ पर एक नई टेक्निक यूज की, यानी n% को यूज करते हुए बेसिकली रिजल्ट को हासिल किया। कॉनकॉर्डिनेट के फार्मूले से और एक एग्जांपल दूं, जैसे हम लोग मोबाइल नंबर आमतौर पे लिखते हैं, लाइक मैंने अपना मोबाइल नंबर लिखा 0333888840। जब मैं इंटर करूंगा तो इसका जो फर्स्ट जीरो है, जब भी कोई नंबर जीरो से स्टार्ट होता है तो आमतौर पे वो गायब हो जाता है। ऐसी सूरत में आप क्या करते हैं, अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं एंड देन जीरो लिखते हैं, 0333888840 और एंटर करते हैं तो ये आपका जीरो रह जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आपके पास हो कि जहां आपको मोबाइल नंबर यूज करने हैं और उसमें जीरो नहीं है, लाइक एक डेटाबेस आपके पास है एम्प्लॉय की जिसमें जीरो नहीं है या +92 नहीं है और आपको इसमें +92 ऐड करना है, तो वो कैसे होगा? इसका बेहतरीन तरीका कॉनकॉर्डिनेट है, इक्वल्स टू कॉनकॉर्डिनेट ब्रैकेट 1। सबसे पहले हम लोग जीरो को देख लेते हैं, जीरो कैसे ऐड होगा। इन्वर्टेड कॉमा में जीरो को हमने डिफाइन किया, कॉमा या n% किसी भी टेक्निक यूज करते हुए बेसिकली हम काम कर सकते हैं। हम यहाँ पर कॉमा ले लेते हैं, देन हमने मोबाइल नंबर को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर करते हैं। आप देखें रिजल्ट जो है वो जीरो के साथ आ रहा है। अगर यही मोबाइल नंबर फॉर एग्जांपल +9 के साथ चाहिए तो फार्मूला यही होगा, इक्वल टू कॉर्डिनेट ब्रैकेट ओपन इन्वर्ट कॉमा +92 इन्वर्ट कॉमा क्लोज कॉमा, मोबाइल नंबर को सेलेक्ट किया और एंटर, आंसर हमारे पास जनरेट हो गया। तो ये डिफरेंट टेक्निक जिसको यूज करते हुए बेसिकली हम काउंट के फार्मूले में की मदद लेकर या कॉनकॉर्डिनेट की हेल्प लेकर बेसिकली आपस में वैल्यू को मिला सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास काउंट का फार्मूला। काउंट का फार्मूला बेसिकली वैल्यू को, नंबर्स को गिनने में हमारी मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर कुछ वैल्यूज हैं, और मैं इसको काउंट करना चाहता हूँ, तो फार्मूला है इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ओपन, तमाम नंबर्स को रेंज में दिया और एंटर किया, आंसर आ गया हमारे पास कि यहाँ पर टोटल 9 वैल्यूज लिखी गई। काउंट का फार्मूला बेसिकली हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू की गिनती करता है। अगर यहाँ पर कहीं स्पेस होगा तो डेफिनेटली काउंट उसको नहीं गिन सकता, और अगर यहाँ पर कोई टेक्स्ट भी होगा तो काउंट उसको नहीं गिन सकता। तो काउंट का फार्मूला सिंपल न्यूमेरिक वैल्यू की गिनती करने में आपकी मदद करता है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप टेक्स्ट को भी काउंट करवाएं, तो इसके लिए फिर हम एक और फार्मूला यूज कर रहे हैं जो कि काउंट ए कहलाता है। काउंट ए का फार्मूला बेसिकली नंबर्स के दरमियान अगर कोई टेक्स्ट भी होगा तो उसको भी गिनेगा। पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि नंबर को तो गिनता ही है, लाइक काउंटिंग तमाम नंबर्स को रेंज में दिया। आप देखें इसने रिजल्ट दिया कि यहाँ 7 वैल्यूज है। काउंट ए डेफिनेटली स्पेस को नहीं गिनता, लेकिन अगर यहाँ कहीं टेक्स्ट ऐड हुआ है तो काउंट ए का फार्मूला उस टेक्स्ट को भी गिन लेता है। यानी काउंट का फार्मूला सिर्फ नंबर वैल्यू गिनता है, टेक्स्ट को नहीं गिनता, जबकि काउंट ए का फार्मूला टेक्स्ट और नंबर वैल्यू दोनों को गिनकर हमें बताता है। जबकि तीसरा फार्मूला काउंट ब्लैंक का फार्मूला है। काउंट ब्लैंक का फार्मूला बेसिकली नंबर के दरमियान खाली स्पेसेस को गिनकर हमें बताएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर कुछ वैल्यूज हैं और मुझे ये चेक करवाना है कि यहाँ पर क्या कोई खाली जगह मौजूद है, तो हम फार्मूला लगाते हैं काउंट ब्लैंक ब्रैकेट ओपन, तमाम नंबर्स को हमने रेंज में दिया और एंटर किया। आप देखें काउंट ब्लैंक ने हमें चेक करके बताया कि यहाँ पर टोटल 1 खाली जगह मौजूद है। काउंट ब्लैंक से मिलता जुलता एक और फार्मूला है काउंट की कैटेगरी में, जो कि कहलाता है काउंट इफ। काउंट इफ का फार्मूला आमतौर पर अटेंडेंस प्रोग्राम के जरिए समझने की कोशिश करते हैं और बड़ा काम आता है वो उसमें। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एम्प्लॉय है आसिम, जो नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट था और
एक दिन एब्सेंट था। अब मुझे ये देखना है कि उसके टोटल वर्किंग डेज कितने हैं, वो कितने दिन प्रेजेंट है, एब्सेंट है, और कितने दिन लीव पर है। फार्मूला हम लगाते हैं इक्वल्स टू वर्किंग डे के लिए काउंट ए का फार्मूला, इक्वल्स टू काउंट ए, क्योंकि काउंट ए ही एक ऐसा फार्मूला है जो कि हमारी टैक्स की वैल्यू को गिनता है। तो हमने काउंट ए के फार्मूले के जरिए तमाम नंबर्स को रेंज में, टैक्स को रेंज में दिया, और फाइनली हम एंटर करते हैं। अब देखें काउंट ए ने बताया कि टोटल 7 वर्किंग डेज यहाँ पर है, जबकि अब हमें इन 7 वर्किंग डेज में से प्रेजेंट को काउंट करवाना है। तो अब हम फार्मूला लगाते हैं इक्वल्स टू काउंट इफ एंड देन ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले हमें कहता है रेंज बताइए कि डेटा आपका कहाँ है। हमने कहा हमारा डेटा लाइक ये है। उसके बाद कहता है कॉमा लगाएं, हमने कॉमा लगाया। फिर कहता है क्राइटेरिया बताइए, इस डेटा में से किस चीज की गिनती करवानी है। हमने कहा इस डेटा में से आप पी की काउंटिंग करें। पी कैपिटल में लिखें या स्मॉल में लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा में जरूर लिखें, क्योंकि क्राइटेरिया हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में ही डिफाइन किया जाता है। देन एंटर करते हैं। आप देखें इसने बताया कि 7 वर्किंग डेज में से 6 डेज एम्प्लॉय प्रेजेंट था। सेम अगर मुझे इसमें से एब्सेंट निकालना है तो हम फार्मूला लगाते हैं इक्वल्स टू काउंटेड ब्रैकेट ओपन, तमाम डाटा को हमने रेंज में लिया, कॉमा, क्राइटेरिया के अंदर अब की बार हमने बताया कि एब्सेंट वाले डेज काउंट करके बताए, एंटर किया, उसने बताया कि एक दिन एब्सेंट है। लास्ट में हम देखते हैं लीव, काउंटेड ब्रैकेट ओपन, डाटा को हमने रेंज में दिया, कॉमा, और हमने क्राइटेरिया के अंदर बताया लाइक लीव, एंटर किया। आप देखें इसने बताया कि टोटल 0 डेज वो एब्सेंट है और किसी भी दिन जो है वो लीव पर नहीं था। तो बेसिकली काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट एफ, ये चारों बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिनको यूज करते हुए हम लोग बहुत से काम आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं।